So we'll be starting with lesson 10, the Criminal Procedure Code 1973. Now, firstly, we see it's a code of criminal procedure. So there are two kinds of branches in law. One is a criminal laws and the second is your civil laws. Okay? Now, क्रिमिनल लॉज जब भी कोई क्राइम होता है, मर्डर, एक्सटॉर्शन, डकॉइटी, ऑल ऑफ दोज, देन इट्स कॉल्ड एज अ क्राइम. एंड फॉर अ क्राइम वी हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसीजर. प्रोसीजरल लॉ इज देयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जहां पे भी हो, you go in your next room and you find a dead body, don't you think it's a crime that has happened? Suddenly a dead body is there with a gunshot noise. So you think a crime हुआ है. तो procedure क्या है? What will happen? So that you will have to see your Criminal Procedure Code 1973. So police will come, they will do an FIR, they will decide कि cognizable, non-cognizable offense, उसका अपील का क्या प्रोसीजर है, ऑल ऑफ दैट. एक क्राइम को कैसे उसको जस्टिस तक लाना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इट्स अ प्रोसीजरल लॉ. इफ इट इज अ सिविल मैटर, ओके, लाइक लेट्स से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, दीज आर ऑल सिविल मैटर्स. ये सिविल मैटर्स को अगर चलाना है तो मुझे सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 देखना है. टेल मी वन थिंग, तुमको ये दो ब्रांचेस में से कौन से एक्साइटिंग लगते हैं? क्रिमिनल लॉ ज्यादा एक्साइटिंग लग रहे हैं या सिविल लॉज? सो क्रिमिनल इज ऑलवेज वेरी 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 एक्साइटिंग when you see also. It's a lot of fun. So I have managed both. I have worked in both areas, so I'll give you my knowledge also on this. Now let's see criminal law. Firstly, the introduction. The law of criminal procedure is contained or related in the Civil Procedure Code. Criminal law is a substantive law. Okay, whereas procedures with respect to that is a procedural law. समझते हैं, दो पार्ट होते हैं लॉज के. एक लॉज को हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं इन सब्सटैंटिव लॉज एंड सेकेंड आर कॉल्ड एज योर procedural laws. So in substantive laws, they give you what are the rights, what are the duties, what are the penalties. वो सब कहाँ पे दिया होगा? राइट एंड रॉन्ग, तुम्हारे क्या राइट्स है, क्या रॉन्ग होता है, वो किधर मेंशन्ड है? इन योर सब्सटेंसिव लॉ. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ सर्टेन सब्सटेंसिव लॉज. वन इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट्स अ सब्सटेंटिव लॉ. Second, I will give you a law of Contract Act. It's a substantive law. It tells you what are the rights, what are contracts, etc. Another example, your IPC, Indian Penal Code, which is very very important for criminal laws. IPC also called as a law of crimes. This is a substantive law. उसमें लिखा रहता है कि गलत क्या है. What is a theft? What is forgery? What is criminal intimidation? These are all criminal terms. It is there. But जब भी substantive law होगा, मतलब कोई violation of a right होगा, तो एक law को, authorities को एक procedure follow करना पड़ेगा. That procedure is given in the procedural laws, which are two, which we just saw, which is your CRPC and your CPC. Okay. Now let's start with a few definitions. First is offense. What do you mean by an offense? Very simple. Section 2N of CRPC denotes the term offense. Offense means any act or omission made punishable. It denotes anything punishable by law. So what is an offense? Any act which is punishable by law is called as an offense. Simple. Next comes mens rea. Mens rea, again we know, means a guilty mind. We've always been doing it. Guilty mind means, or I could say a bad intention. You had the intention to do the crime. Now tell me, in criminal laws, is mens rea required?
is it required that the person, the accused, has the intention to do the act? Is mens rea required in criminal laws? Answer is yes. Okay, mens rea, the fundamental principles of penal liability, हम तभी ही तुमको penalize कर सकते हैं जब आपका intention होगा, when you had intended to do an act. It is embodied in the maxim. It is embodied in the maxim act non facet rems nimis this. Okay, the act itself does not constitute a guilt, which means that the act itself does not constitute a guilt unless it is done with a guilty intention. So in order for an act to be a crime, the person will have to prove, the complainant will have to prove that you had the intention to do the crime. For example, let's say agar if I want to accuse someone of murder, I will have to prove that they intended or they had a bad faith to kill the person. Let's say a doctor who tried to help the patient but ultimately the operation was not successful. Can he be held liable for murder? Answer is no, because he didn't have the intention to kill. Okay, but there are certain exceptions in law where law believes that you had the intention. For example, rash and negligent driving. सलमान खान जिसके अंदर इन्वॉल्व है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग. सो उसमें तो इंटेंशन नहीं होता. इफ आई एम ड्रंक एंड आई एम ड्राइविंग एंड आई have a meet with an accident killing few people, I'll say I never intended to kill them. तो मेरा intention कहाँ है? But still can I go in imprisonment? Can I get imprisonment? Answer is yes. Why? Because law imposes intention on you. They say कि you after drinking went on the driving seat, you drove, so you were grossly negligent. That you must have understood only कि अगर मैं ऐसा ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा हूं तो किसी और का मैं लाइफ रिस्क पे डाल रहा हूं. सो लॉ इम्पोजेस द इंटेंशन ऑन यू. सो दिस इज मेंस रिया. नाउ जो भी लॉ में ऑफेंसेस होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट, इवन दिस एंड इवन योर कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट, all offenses can be classified into bailable, non-bailable, or another classification can be done cognizable and non-cognizable. पहले समझते हैं what do you mean by a bailable offense. Very simple, in which you can get a bail. But definition क्या लिखा है ये देखो. A bailable offense means an offense which is shown bailable in the first schedule. Now I'll tell you, इसमें मैंने दोनों ही डील किया है. एक बेलेबल ऑफेंस में भी मैटर गया हो और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी डील किया है. पहले बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं. अब जो ऑफेंसेस है उसको डिवाइड करते हैं वो लोग लॉ में, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल. नाउ बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? एज अ matter of right you can claim a bail. So when a accused has been charge sheeted, means the police has created a charge sheet and then the accused or his family will contact the lawyer. They will contact me. They will say कि हमारे XYZ person को पुलिस उठा के लेके गई है और उसको जेल में डाल दिया है, कस्टडी में ले लिया है, आप प्लीज उसको छुड़ाओ. सो एज ए लॉयर व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई विल आस्क? आई विल से चार्जशीट बन गई है उसकी, मुझे चार्जेस कौन से लगाए वो दो मुझे. सो आई विल कम टू नो उसके ऊपर सेक्शन 498 लगाया है, कौन से सेक्शन लगाया है, मोटर व्हीकल्स एक्ट का लगाया है, एक्सेट्रा. एक बार मुझे सेक्शंस पता चल गए कौन से उसको एक्यूजेशन है कि उसको चार्जशीट में कौन से सेक्शंस लगाए हुए हैं, तब मैं उसका रिसर्च करूंगा और उसमें देखूंगा कि वो जो है शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में जाऊंगा और फर्स्ट शेड्यूल में उसको बेलेबल दिखाया है या नॉन बेलेबल.
सो एक मैटर था, उसके अंदर क्या हो गया था, ये जो थोड़े यंगस्टर्स थे वो लोग जोर से म्यूजिक बजा रहे थे और पार्टी वार्टी कर रहे थे, एंड देन दे वर प्लेइंग कार्ड्स, स्नूकर और पोकर, और वो म्यूजिक लगा रहे थे, आंटी पुलिस बुला लेगी, समथिंग लाइक दैट. सो आंटी ने एक्चुअली पुलिस बुला ली. पुलिस आई और जो भी यहाँ पे खेल रहे थे ना कार्ड्स, दे वर हैविंग अल्कोहल, दे वर हैविंग अ पार्टी एक्चुअली. द पुलिस पुट अ चार्ज ऑफ गैम्बलिंग ऑन देम. गैम्बलिंग का चार्ज लगा दिया उनके ऊपर, दैट दे आर गैम्बलिंग हियर. सो अल्टीमेटली देन दे कॉन्टैक्टेड मी. अब मैंने गैम्बलिंग के देखे कौन से सेक्शंस है, मेरे को पता चला फर्स्ट शेड्यूल में दिखाया कि वो बेलेबल ऑफेंस है. सो आई अप्लाइड फॉर बेल एंड बेल वॉज ग्रांटेड. सिंपल. सो आई हैव टू सी, इट इज सी इन द फर्स्ट शेड्यूल, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंस दिया हुआ है मर्डर, और मेंशन करेंगे कि वो बेलेबल या नॉन बेलेबल. तो कभी कभार नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी मिल जाते हैं. मर्डर हो गया तो नॉन बेलेबल, सर्टेन वुमेन रिलेटेड सीरियस ऑफेंसेस नॉन बेलेबल, टेररिज्म नॉन बेलेबल. तो नॉन बेलेबल में क्या बेल मिलती है? क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलेगी? नो. एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है लोगों का कि बेल नहीं मिलेगी नॉन बेलेबल में. नॉन बेलेबल में अक्यूज्ड कैन नॉट आस्क फॉर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट. डिमांड नहीं कर सकता. मैं ये वाले ऑफेंस जो है ना बेलेबल में, मैजिस्ट्रेट को बोल सकता हूं बेल दो मेरे को. बाय लॉ मैजिस्ट्रेट हैज टू गिव यू अ बेल. नॉन बेलेबल में क्या होता है, तुमको फाइट आउट करना पड़ेगा. तो एक बार मेरा एक क्लाइंट था, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था, थेफ्ट. उसने एक इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए 2 करोड़ रुपए लिए थे. 2 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए उसने ऑलरेडी ले लिया था अपने अकाउंट में, और जैसे ले लिया उसने गांव भाग गया. वो फोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. तो पुलिस ने उसको कहीं से भी ढूंढ के अरेस्ट किया और लेके आई जेल, और उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया. नाउ दैट वाज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. सो आई अप्लाइड फॉर द बेल. मेरे पास बेल का एप्लीकेशन भी है. उसके अंदर अप्लाई किया, बेल रिजेक्ट हो गया उसका. I applied on various grounds that he was in, kindly grant him the bail for XYZ. Bail can be rejected. But जो lawyers होते ना, the main money that the lawyers can get is when non-bailable offense में bail दिला दो. ये कैसा होता है? There are certain very grounds where I prove prima facie, starting में prove कर दूं कि मेरा जो client है उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है. ही हैज बीन wrongly implicated, wrongly involved in this thing. He is innocent, he has roots in India, he has house in India, he will not run away. Granting him bail, he will not try to destroy the evidence, will not try to tamper with the witnesses, etc. And if the court is satisfied, then they will grant the bail. So the magistrate के डिस्क्रिशन पे है. द लॉयर विल हैव टू फाइट हार्ड टू गेट अ बेल इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. इन नॉन बेलेबल द अक्यूज्ड कैन नॉट डिमांड अ बेल. ही हैज टू फाइट फॉर अ बेल, आस्क फॉर अ बेल, एंड द मैजिस्ट्रेट इफ ही सैटिस्फाइड विल ग्रांट द बेल. फेयर इनफ. तो एक दूसरा भी मैटर था, पॉस्को का मैटर था. POSCO is, you can read it up. It's related to child. Okay. Harassment to children and all of that. उसमें भी accused को बेल रिजेक्ट कर दिया. उसमें तो बेल देते ही नहीं है. चिल्ड्रन के ऊपर जो ऑफेंसेस करते हैं, POSCO के मैटर्स है, उसमें रिजेक्ट कर दिया बेल. एक था काउंटरफीट नोट्स, बेल रिजेक्ट कर दिया. हाई कोर्ट तक गए, वहां तक भी रिजेक्ट हो गई बेल. तो कभी कभार बेल मिल जाता है अगर तुमने अच्छा एविडेंस दिया तो बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है? एज पर सेक्शन 2A, अ बेलेबल ऑफेंस is an offense which is shown as bailable in the first schedule. Non bailable which means any other offense. अब आता है कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल. ये भी सुपर इंटरेस्टिंग.
सबसे पहले अगर झगड़ा हुआ, क्राइम हुआ, तुम किधर फोन लगाओगे? मैजिस्ट्रेट को फोन लगाओगे कि पुलिस को? सबसे पहली चीज तुम किसको फोन लगाओगे व्हेन यू सी अ क्राइम? सो यू विल कॉल द पुलिस. अब पुलिस के सामने तुम कुछ स्टेटमेंट्स बोलोगे कि ये हुआ है, XYZ गलती हुई है. अब पुलिस वो ऑफेंस को क्लासिफाई कर सकती है इनटू कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस, ठीक है. कॉग्नाइजेबल वर्ड का मीनिंग क्या है? द वर्ड कॉग्नाइजेबल का मीनिंग क्या है? सो कॉग्नाइजेबल सिंपली मीन्स सीरियस ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्नाइजेबल मीन्स नॉन सीरियस ऑफेंसेस. नॉन सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है. तो अगर मैं जाके बोल रहा हूं कि मेरे घर में चोरी हुई है और इतने करोड़ का माल सब चोरी हो चुका है और वो लोग गन लेके आए थे, हम लोग को गन पॉइंट पे पैसा लेके चले गए, तो पुलिस उसको किस में क्लासिफाई करेगी? कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल? नॉन कॉग्नाइजेबल. सीरियस ऑफेंस है ना, तो इसके अंदर एक FIR पुलिस लिखेगी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. इट इज गिवन अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC. FIR लॉज होता है, सुना है कभी FIR के बारे में? जब भी यू गो टू द पुलिस एंड गिव देम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ cognizable offense, a serious offense, they will immediately jot down a FIR, first information report. But अगर मैं जाके नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जाके रिपोर्ट कर रहा हूं, इट इज अ क्राइम बट नॉट सीरियस क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, दो जन आपस में झगड़ा कर रहे थे, गाड़ी का जरा सा फ्रिक्शन हो रहा था, रोड रेज, दे वर गिविंग अब्यूजिंग ईच अदर. तो ऐसा भी हुआ है, दो जन झगड़ा कर रहे थे, पुलिस के पास में गए, पुलिस को लगा कि ये सीरियस मैटर नहीं है, तो क्या वो लोग ने उसको नॉन कॉग्नाइजेबल में क्लासिफाई कर दिया, विच इज कॉल्ड एज अ NC. तो कितनी बार क्या होता है, NC इशू हो जाता है अगर कोई सीरियस ऑफेंसेस नहीं है. तो मैंने देखा है कितने सारे NCs इशू होते हैं छोटे मोटे झगड़ों के लिए, NC इशू कर दिया. नाउ FIR जब इशू होता है तो इसका मतलब क्या है? FIR इशू होगा मीन्स द एक्शन विल नाउ बी टेकन, इन्वेस्टिगेशन will begin into the crime by the police. बट अगर एक नॉन सीरियस ऑफेंस होता है, एक NC इशू होती है, ओके, तब पुलिस कैनॉट इन्वेस्टिगेट. द पुलिस कैनॉट इन्वेस्टिगेट फर्दर into a non-cognizable offense unless court orders. ये कहां पे दिया है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस? इट इज गिवन अंडर सेक्शन 155 ऑफ CRPC. अब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में डेफिनेशन देखते हैं. सेक्शन 2C डिफाइंस व्हाट इज अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. 2C, तो सेक्शन 2C defines what is a cognizable offense. A cognizable offense is a offense in which the police officer can arrest without warrant. Warrant मतलब permission of court. For example, सोचो एक कसब आया है और he is firing indiscriminately, ऐसे ही गोली चला रहा है वो, तो तुमको लग रहा है पुलिस को मैजिस्ट्रेट के पास में जाके वारंट निकाल के फिर अरेस्ट करने आना चाहिए कि इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए? फॉर इमीडिएट अरेस्ट एक वारंट इशू हो. इमीडिएट अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं है, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट. सो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? योर सेक्शन 2C, अ केस इन विच द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट अ वारंट. Non-cognizable offense is an offense which the police officer
has no authority to arrest without warrant. Warrant means a permission. You have to take permission from a magistrate or a court, only then you can arrest. समझ में आया? कॉग्नाइजेबल, नॉन कॉग्नाइजेबल. अब ये एग्जाम में आ चुका है. Discuss the provisions with respect to the information to the police officer and the power to investigate in cognizable and non-cognizable offences. Can you tell me, police officer can investigate in which kind of offences? Cognizable or non-cognizable? In cognizable offences. Police officer cannot investigate in नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है. नॉन सीरियस ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर नहीं जाएगा, बोलेगा आप लोग जाओ कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, फिर करूंगा मैं इन्वेस्टिगेशन. नाउ लेट्स सी, हम लोग ने देखा था सेक्शन 154 एफआईआर के बारे में. कभी भी तुमने पुलिस में जाके कंप्लेन किया है और एफआईआर लॉन्च हुआ है? हो सकता है घर में कभी चोरी होगी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, समथिंग, कुछ क्राइम हो रहा है, किसी ने तुम्हें थ्रेटन किया है और एक मारा मारी हो गई, वेयर दे हैव ब्रोकन द बोन्स, गैंग फाइट, ड्रग्स, ऑल ऑफ दिस, एफआईआर इज लॉन्च. दीपिका पादुकोण के ऊपर ड्रग्स का केस, रिया चक्रवर्ती, इनसाइटिंग ऑफेंस ऑफ सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, एफआईआर. तो एफआईआर में क्या होता है? अ पर्सन विल हैव टू गो एंड गिव अ कंप्लेन. The police officer will write down your complaint. They will figure out कि ये तो cognizable offense है. They will read it to the informant. तो जो information दे रहा है उसको पढ़ेंगे भी FIR में क्या लिखा है. Every such information shall be signed by the person giving it. तो जो informant है वो साइन भी करेगा कि हाँ मैंने ये बताया है, और ये जो FIR का कॉपी है वो तुम्हें भी दे देंगे और पुलिस ऑफिसर भी एक अपने पास में कॉपी रखेगा. The information given to the police officer is reduced in writing is called as an FIR. The investigation of the case proceeds on this information only. Automatically the police officer will proceed with the matter. Thus, the principal object of this section 154 is to set the criminal law in motion and obtain information about the alleged criminal activities and to punish the guilty. What if, have you noticed so many times a police officer refuses to register the FIR? They say नहीं 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 हमको नहीं लग रहा है serious. In that case, what would you do when your FIR is being refused from being registered? So any person, you have to go in appeal to the superintendent of police. उसको लेटर लिखना पड़ेगा, एसपी को लेटर लिखना पड़ेगा, फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर को बोलेगा, डायरेक्ट करेगा टू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू रजिस्टर द एफआईआर. मतलब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में एफआईआर लॉन्च होना ही चाहिए. एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज to record the information may send the substance of such information in writing and by post to the superintendents. So if I am aggrieved कि मेरा एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा, मेरा कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रहा है, एफआईआर इशू नहीं हो रहा है, तो मैं सुपरिंटेंडेंट को लेटर लिख दूंगा. हु इफ सैटिस्फाइड विल डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ द कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड ईदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. तो एक एग्जाम्पल देता हूं कहां पे पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया था. अभी हस्बैंड वाइफ का मैटर था, हस्बैंड एंड वाइफ का मैटर था, एंड द वाइफ हैड alleged on the husband of cruelty, that he harasses me, he beats me up, he threatens me, he's asking for dowry, etc. Now what happened? The police officer said कि आप लोग का पर्सनल मैटर है, आप लोग जाओ फैमिली कोर्ट में जाओ. Now tell me, it is a matter of cruelty, it is a matter of dowry. Shouldn't the police officer register it? He had to register, he had to make a FIR, but नहीं किया. तो क्या हो गया? वाइफ had to go to the superintendent of police, एसपी के पास में जाना पड़ा, और एसपी को फिर बाद में लेटर लिखना पड़ा, और एसपी डायरेक्ट करेगा पुलिस को कि आप प्लीज एफआईआर लॉन्च करो. क्लियर है ना?
Why police hesitate? Why police don't file FIR easily? Firstly, it is possible because their work will increase. It will be bad that in their area there is so much crime, because statistics में आ जाएगा कि आपके एरिया में इतने सारे FIR लॉन्च हो गए. And third, the police feels that it is a fake case that is being registered or it is something false. So he rejected the FIR. Now let's see further. Information with respect to non-cognizable offenses. तो कितनी बार हम लोग गए थे कंप्लेनेंट के साथ में, NC इशू हो गया. अब NC इशू हो गया ना, तो पुलिस ने बोला कि ऑफेंस है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, नॉन सीरियस ऑफेंस है, इसमें अगर आपको फर्दर चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन, आप जाओ कोर्ट के पास से ऑर्डर लेके आओ. सो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द ऑफिसर इन चार्ज विद इन द लिमिट्स ऑफ द सच स्टेशन, मतलब तुम कहाँ पे रहते हो, तुम्हारी पुलिस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के बाजू में जाके तुम एक ऑफेंस के बारे में दोगे जो नॉन सीरियस है, then that officer will definitely write it in his book, issue a NC. Then the police officer is not authorized to investigate into a non-cognizable offense without the order of the magistrate. Now moving forward, limitation for taking cognizance of a offense. Let's say, does limitation period apply to criminal law? Limitation period applies to criminal law. मतलब क्या, मैं बोल रहा हूं कि मेरे को 3 साल पहले किसी ने मारा था, बहुत मारा था, मेरी हड्डी भी तोड़ दी थी, और आज मैं उसका केस रजिस्टर करना चाहता हूं. यू थिंक रजिस्टर होगा? इज देयर अ टाइम लिमिट टू फाइल द केस? अगर आज ऑफेंस हो रहा है तो मुझे एक टाइम लिमिट के अंदर पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, येस और नो? So, law has also put limitation for certain criminal laws, but certain kind of criminal laws के ऊपर limitation period नहीं apply होता है. Murder, certain kind of grievous offenses, the magistrate has the power to reopen any case. But for general offenses where you could have complained and you did not complain, there is a limitation period put up. Let's see. Except as otherwise specifically provided in the code. So certain times CRPC के अंदर ही टाइम लिमिट दिया रहता है कि द पर्सन शुड हैव कंप्लेन विद इन 1 year, विद इन 3 years. अगर कोड में स्पेसिफिकली नहीं मेंशन्ड है, देन दिस इज द जनरल रूल. तो जनरल रूल क्या है? दैट नो कोर्ट शैल टेक कॉग्नाइजेंस. कॉग्नाइजेंस मीन्स शैल टेक, they will look into the matter, cognizance, recognition of any offense after the limitation period mentioned below. 6 months if the offense is punishable with fine only. Agar offense with fine only, the maximum time in which you should have gone to the court is 6 months. If the offense is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year, मतलब 1 year के अंदर punishment prescribe किया है वो offense के लिए, so the time limit is 1 year. मतलब क्या, यहां पे ऑफेंस हुआ है, अब विद इन अ सर्टेन टाइम, लेट्स से दिस इज द टाइम लिमिट, यू विल हैव टू गो टू कोर्ट. सो डिपेंडिंग, अगर ऑफेंस पनिशेबल कितने ईयर्स से है, सो ऑफेंस का पनिशमेंट कितना लिखा हुआ है. अगर ऑफेंस का 6 months लिखा है तो यू शुड हैव गॉन. इफ ऑफेंस का is punishable with fine only, like certain small matters, सिर्फ फाइन लिखा है, तो you should have gone to the court within 6 months. If offense is given के 1 year का punishment mentioned है, तो you should have, जब भी offense हुआ within 1 year you should have gone to the court. And lastly, if the offense is punishable for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years, तो 1 to 3 years रहेगा. Okay, so you have to go to the court within 3 years from the time the offense was committed. Beyond that time prescribe नहीं किया है, तो 3 years के beyond हो सकता है कि कभी भी कोर्ट उठा सकती है क्रिमिनल मैटर्स को.
Now coming to complaint. Again, this is a past year exam question. What do you mean by complaint? Simple, we understand. What do you understand by a complaint? It is an allegation. But this allegation is made to whom? It is made to the magistrate. And क्या magistrate को complain कर रहे हो? अरे देखो वहां पे crime हुआ है. Not that. You are complaining that please take action. You are making a complaint with a view to taking action under this code. That some person, either known, मैं जानता हूं उसने crime किया है, या पता नहीं चोरी किसने किया है, unknown, has committed an offense. So this is given under your section 2D. A complaint in criminal case is what a plaint is in civil case. वही सेम चीज अगर सिविल मैटर होता तो हम क्या बोलते, प्लेंट फाइल करना है, और जो पर्सन फाइल कर रहा है उसका नाम क्या होगा, प्लेंटिव, सिविल मैटर्स में. वही चीज अगर क्रिमिनल लॉ में है तो वील कॉल इट एज अ कंप्लेंट इज इन क्रिमिनल केस. द रेक्विजिट्स ऑफ कंप्लेंट आर एज बिलो. एक एलिगेशन होना चाहिए दैट सम पर्सन नोन और अननोन हैज कमिटेड द ऑफेंस. इट हैज टू बी मेड टू द मैजिस्ट्रेट. Magistrate is a judge of criminal courts. And lastly, it must be made with the object of seeking action. So the person making the complaint is making a complaint ताकि please take action. Now coming to a very interesting part, something which I had applied for bail twice and many times. Bail. अब bail का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट मूवीज में भी देखा है, बेल के लिए आते हैं. Bail means what? It is release of a person, of the accused, from the custody of the officers. पुलिस ऑफिसर्स की कस्टडी से जाते हैं और प्राइवेट कस्टडी में आते हैं, एंड लॉ एंड एंट्रस्टिंग देम टू प्राइवेट कस्टडी. बट क्या रिलीज कर दिया उनको? आंसर इज नो. दे विल हैव टू कम. विटनेसेस जो है, जो भी उनका बॉन्ड साइन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, श्योरिटी बॉन्ड रहता है, वो श्योरिटीज take the responsibility that they will produce the accused to answer the charge at the time and date whenever the court calls. So tell me one thing, is Salman Khan out on bail? Yes or no? Is on bail. Means what? He is released from the custody of police officers and put into private custodies where there must be some sureties. जिन लोग ने गारंटी ली है, उसके डैडी ने गारंटी ली होगी कि जब भी आप बुलाओगे सलमान खान हाजिर हो जाएगा. श्योरिटीज प्रोड्यूस दैट द अक्यूज्ड विल कम टू आंसर द चार्ज. सो दिस इज नथिंग बट अ बेल. एक दूसरा सुपर इंटरेस्टिंग एंटिसिपेटरी बेल. मार्केट एज सुपर इंपॉर्टेंट. इसका बहुत पैसा लेते लोग, लॉयर्स. एक बार मेरे पास में भी आया था फॉर 438A. 438 एंटिसिपेटरी बेल. लॉयर्स के लैंग्वेज में इसको ABA बोलते हैं, एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन. ABA फाइल करना था. अब बहुत सारे केसेस हैं बट उसमें से एक केस देता हूं तुमको. एंटिसिपेटरी बेल मीन्स द पर्सन इज एंटिसिपेटिंग अरेस्ट. ही इज फोरसीइंग एन अरेस्ट, एप्रीहेंडिंग एन अरेस्ट. ही इज अज्यूमिंग कि वो अरेस्ट हो जाएगा. अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है बट अरेस्ट होने वाले, पुलिस घर पे आने वाली है, उसको अरेस्ट करने वाली है, वो पहले से ही बेल के लिए अप्लाई कर देता है. अब ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे पहले से ही सोच सकता हूं कि मैं अरेस्ट होने वाला हूं? एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे हैं बट आई गिव यू वन. अब एक केस था, ये एक स्टूडेंट था. स्टूडेंट अप्लाइड फॉर LLB. तुम लोग कितने सारे स्टूडेंट्स LLB के लिए अप्लाई कर रहे हो? बंदे ने खाली LLB के एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया और उसके ऊपर FIR लॉन्च हो गया. LLB के एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर रहे, FIR लॉन्च हो गया और ही इज एंटिसिपेटिंग अरेस्ट. ही इज एंटिसिपेटिंग अरेस्ट. अब कैसे एंटिसिपेटिंग अरेस्ट? उसको पुलिस स्टेशन से फोन आया, पुलिस स्टेशन से कॉल आया है बंदे को, स्टूडेंट को, कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स इशू किए ना वो गलत है LLB के लिए. फौज तो बेसिकली क्या था, बंदे ने ना SC ST कैटेगरी में अप्लाई किया था और उसने सर्टेन डॉक्यूमेंट्स इशू किए थे टू क्लेम SC ST.
अब जैसे गया यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी को डाउट लगा ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पुलिस को कंप्लेन कर दिए वो लोग ने, यूनिवर्सिटी ने, कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, ऐसा कोई है ही नहीं डॉक्यूमेंट। पुलिस ने इसके ऊपर फॉर्जरी का केस कर डाल दिया। अब देखो यहाँ पे फॉर्जरी 464 का चार्ज लगा दिया उसके ऊपर, दैट मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, ही इज मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट ऑफ SC/ST। अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट who dishonestly or fraudulently makes, signs, executes a document with the intention knowing that a document is false. So इसकी पनिशमेंट कितनी थी? 2 years और फाइन और बोथ, पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी। तो इमीडिएटली उसने हम लोगों को कांटेक्ट किया, लॉयर्स को कांटेक्ट किया कि मेरे को पुलिस ने बुलाया, क्या करूं मैं? तो हम लोग ने देखा इसके ऊपर फॉर्जरी का चार्ज लगा दिए। तो हम लोग ने बोला कि एप्लीकेशन कर दिए कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के पास में गए, और मैजिस्ट्रेट में क्या एप्लीकेशन दिया हम लोग ने कि अभी तक बंदा अरेस्ट हुआ नहीं है, हम लोग एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कर रहे हैं, ABA। अब कोर्ट के सामने हम लोग ने प्रेजेंट किया, रीजंस दिए, वी हैड टू आर्ग्यू दैट सी ये जो फॉल्स, ही इज अ ST/ST, ये जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है ना, इसने नहीं किया, इसके एजेंट ने किया था गलत। ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, ही इज अ SC/ST, सी ऑल दीज डॉक्यूमेंट। कोर्ट ग्रांटेड द ABA, एंटीसिपेटरी बेल दे दिया उसको बिफोर बीइंग अरेस्टेड। दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर अगर फंसेगा, एक पार्टनर को अरेस्ट कर दिया, तो दूसरे पार्टनर्स ऑटोमेटिकली एंटीसिपेट करेंगे कि नहीं अरेस्ट? तो यहां पे देखो, एक पार्टनर ऑफ अ लॉ फर्म, पार्टनर्स A, B and C वर पार्टनर्स। व्हाट हैपेंड, कुछ ना कुछ किसी ने कंप्लेन कर दिया कि पार्टनरशिप फ्रॉड में चल रहा है, और C अरेस्ट हो गया फॉर अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, एक सीरियस ऑफेंस के लिए। C अरेस्ट हो गया। टेल मी वन थिंग, A और B डरेंगे कि नहीं? विल A and B ऑल्सो गेट स्कैर्ड? अरे यार, अपना एक पार्टनर तो जेल में चला गया, उसको अरेस्ट कर लिया, अभी हो सकता है पुलिस धीरे धीरे ये नाम लेगा, हम लोग का ही नाम लेगा। तो ये इमीडिएटली कोर्ट में क्या अप्लाई कर देंगे? एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। अब हो सकता है ये एक्सेप्ट हो और कोर्ट बेल ग्रांट कर दे या नहीं ग्रांट करे, रिजेक्ट भी कर सकते हैं ABA एप्लीकेशंस। नाउ टेल मी, ABA जो एप्लीकेशंस है, तुम एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए अप्लाई करोगे कि नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए? सी, नॉन कॉग्नाइजेबल, नॉन सीरियस ऑफेंस जो रहते हैं वो तो उसमें ऐसे ही बेल मिल जाएगी तुमको। बेलेबल ऑफेंस में तो ऐसे ही बेल मिलता है, तुमको क्यों टेंशन लेने की जरूरत है? ये जो भी ABA अप्लाई होता है ना, इट इज ओनली फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो वेयर एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशंस to a person who apprehends, assumes, believes, anticipates an arrest for having committed a non-bailable offense। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग, फाइट करना पड़ता है उसमें कि नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बट हमने तो किया ही नहीं है, हमको फंसा दिया गया है। मैजिस्ट्रेट को कन्विंस करना पड़ेगा तुमको। सो दिस बेल इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ही मे और मे नॉट ग्रांट यू, बट who has not yet been arrested। अब तुम देखोगे एक दूसरा लास्ट एग्जाम्पल, अर्नव गोस्वामी TRP स्कैम में उसको ऑलरेडी पता चला कि एक FIR लॉन्च हो चुका है, और धीरे धीरे करके रिपब्लिक टीवी का नाम आएगा और अर्नव गोस्वामी को भी लेके जाएंगे। तो पहले से ही वो ABA के लिए अप्लाई कर देगा, एंटीसिपेटरी बेल, सेइंग दैट इट इज he should not be arrested. If the court is satisfied, they will grant him the case. Next we are seeing inquiry, investigation and trial. Inquiry, investigation and trial. First,
these are 3 stages of a crime. Stages पहले देखते हैं. It includes all the proceedings before the magistrate. There are 3 terms: investigation, inquiry and trial. 3 different stages of a criminal case. The first stage is when the police officer, either on its own or on the order of the magistrate, investigates into the case. So first stage कौन सा है? Investigation. Normally, courts, as a routine manner, the police officer investigates into the case. आगे. If he finds that no offence has been committed, he will submit his report to the magistrate, who will drop the proceedings. तो पुलिस ऑफिसर विल इन्वेस्टिगेट, उसको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है तो वो ड्रॉप हो जाएगा मैटर. बट इफ ही इज ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन, ही विल सेंड दैट केस टू द मैजिस्ट्रेट एंड देन बिगिन्स द सेकेंड स्टेज, विच इज अ ट्रायल और एन इंक्वायरी. फिर थोड़ा डिटेल में इंक्वायरी होगी. व्हेन यू फील कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिल गया है, यू रिपोर्ट इट टू द मैजिस्ट्रेट, देन द मैजिस्ट्रेट विल ऑर्डर एन इंक्वायरी. और इंक्वायरी में भी अगर कुछ पता चल गया, थोड़ा ऑल डेप्थ में पता चल गया, देन द नेक्स्ट स्टेज विल बिगिन, विच इज कॉल्ड एज अ ट्रायल. अ प्रॉपर केस या प्रोसीडिंग चलेगा. सो इट मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय? इट मीन्स every inquiry other than a trial is an inquiry conducted under this code by a magistrate or court. It carries out the 3 features. Inquiry is different from a trial. Inquiry is wider than a trial because कभी कभार inquiries में drop हो सकता है या trial चालू हो सकता है. And it stops when trial begins. So tell me, ये तीनों में से सबसे widest कौन सा है? From your, which is the most widest? Is investigation. Okay? इन्वेस्टिगेशन के अंदर रूटीन चेकअप्स होते हैं. 2 नाम ऐसा लगता है बट फिर भी ये सबसे पहला स्टेज है. अगर कुछ डेप्थ में लगा कि और थोड़ा डिटेल इंक्वायरी की जरूरत है तो फिर इंक्वायरी होगा. और इंक्वायरी में भी अगर कुछ लगा कि गलत हो ही गया है तो देन ट्रायल विल बिगिन. नाउ 2 है वर्ड्स, एक होता है प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है. अगर एक क्रिमिनल केस होता है, सो एक तरफ से स्टेट विल फाइल अ केस ऑन द अक्यूज्ड. स्टेट की तरफ से एक लॉयर आएगा जिसका नाम होगा पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ही विल ट्राई टू गेट द अक्यूज इन जेल. और अक्यूज्ड अपना क्रिमिनल लॉयर को लेके आएगा जिसका नाम रखेंगे हम लोग pleader. So either the accused himself can plead or he can plead it through his own lawyer. So examples of pleader could be Ram Jethmalani, any criminal lawyers, and public prosecutors. वो लोग रहते हैं कोर्ट के अंदर ही रहते हैं, हर एस्पेक्ट में वो लोग अपोज करते हैं, बेल को अपोज करते हैं. They try to get the guilty in jail. So it means a person who is authorized by law to practice in courts, that is basically lawyers, and includes any other person who is with the permission of the court allowed to plead. Next, public prosecutor means any person appointed under section 24 and includes any person who is acting under the directions of the public prosecutor. अब आते हैं summons and warrant case पे. Very very interesting. फर्स्टली केसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं वो लोग, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं केसेस का. एक केस का क्लासिफिकेशन होता है समन्स केस एंड सेकंड क्लासिफिकेशन होता है वारंट्स केस. नाउ टेल मी वन थिंग, यहां से बड़े ऑफेंसेस कौन से होंगे, समन्स या वारंट? ये दोनों में से कौन से तुमको लग रहे जो सीरियस होंगे, जिसके अंदर थोड़ी ज्यादा पेनल्टी होगी, ज्यादा इम्प्रिजमेंट होगा? सो दे आर कॉल्ड एज वारंट केसेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन.
तो कभी कभार कोर्ट्स में रहता है ना, तो हम लोग पूछते हैं कि कौन सा केस है, समन्स केस है या वारंट। तो अगर वारंट केस बोला मतलब समझ जाओ कि बड़ा केस है, कुछ बड़ा थेफ्ट, डकॉइटी, मर्डर, एक्सटॉर्शन, वो सारी चीज़ों के बारे में हो रहा होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड, अ समन्स केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। तो अगर वारंट केस नहीं है तो क्या होगा, समन्स केस। सिंपल डेफिनेशन, सेक्शन 2W कॉन्क्रीट डेफिनेशन दिया है वारंट का। व्हाट इज अ वारंट केस? अ वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। अगर कोई भी ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, सेकंड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, और विद अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, और 2 years से ज्यादा का अगर पनिशमेंट है, so then it will be considered to be warrant case. क्लियर? तो कसब का जो केस था वो समन्स केस था या वारंट? वारंट केस। क्लियर इतना? समन्स छोटे ऑफेंसेस हो रहे थे जिसमें पनिशमेंट 2 साल अप टू 2 years है, बिकॉज दिस इज अ टर्म एक्सीडिंग 2 years. सो समन्स केस कुड बी अ केस अप टू 2 years इम्प्रिजमेंट स्पेसिफाई किया है ऑफेंस के लिए. नाउ कमिंग टू कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, वेरी 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 इंटरेस्टिंग. यू टेल मी कि अलग अलग कोर्ट्स होती है कि नहीं? क्रिमिनल मैटर्स चलाने के लिए अलग कोर्ट्स होती है, सिविल मैटर्स चलाने के लिए अलग कोर्ट्स होती है. सो इफ वी गो टू सी, एक हायरार्की बनाते हैं. सबसे बड़ा कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल मैटर्स के लिए. उसके नीचे जो कोर्ट आती है वो है सेशंस कोर्ट. सेशंस कोर्ट इज जस्ट बिलो दैट. उसके नीचे आएगा जेएमएफसी, ओके, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. देखो पहले हाई कोर्ट आता है, फिर उसके नीचे आती है सेशंस कोर्ट, फिर आता है जेएमएफसी, फिर आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और फिर उसके नीचे आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास. नहीं होता है, उसका नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. तो दिस इज द हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. तो सबसे बड़े ऑफेंसेस यहां पे लिखा भी है, पावर ऑफ दीज कोर्ट्स. तो सबसे बड़ा पावर किसके पास होगा? हाई कोर्ट के पास में. उससे थोड़ा कम सेशंस, उससे थोड़ा कम जेएमएफसी, फिर ये और ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. सो दीज आर ऑल क्रिमिनल कोर्ट्स. देखते क्या क्या पावर्स है. व्हाट, क्या पावर्स और कितनी फाइन लगा सकते हैं वो लोग ने मेंशन किया है. सो सेंटेंसेस विच अ हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन जज कैन पास. सो हाई कोर्ट कैन पास any sentence authorized by law. So they can give any sentence, whether it be life imprisonment, whether it be death penalty or any other fine. Any offense ka punishment can be given by the high court. Sessions court का क्या पावर है देखते हैं. A session judge may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death shall be subject to the confirmation of हाई कोर्ट. तो अगर डेथ रहेगा ना तो सेशंस कोर्ट में हाई कोर्ट का कंफर्मेशन चाहिए. फिर थर्ड हम लोग देखते हैं जेएमएफसी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास क्या पावर है. सो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जेएमएफसी कैन पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज और बोथ. तो 10,000 रुपये और बोथ. और वैसे ही जेएम सेकेंड क्लास का क्या है? अप टू 5,000 रुपीज एंड अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year. तो हाई कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर, एनी सेंटेंस. सेशंस कोर्ट एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ. डेथ के लिए हाई कोर्ट के पास में जाना पड़ेगा. जेएमएफसी के पास में कितना पावर है? 3 years, राइट? 3 years एंड 10,000. ये है 3 years एंड 10,000 रुपीज का फाइन मैक्स लगा सकते हैं. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 year एंड 5,000 रुपीज का फाइन लगा सकते हैं. सो 1 year एंड 5,000.
ना लेट्स से एक फाइन इम्पोज हुआ है, कोर्ट ने फाइन लगाया है और जो अक्यूज्ड है फाइन नहीं भर सकता. सो व्हाट विल वी डू? इमेजिन फाइन वॉज लेवीड ऑफ ₹50,000. अब ये बोल रहा है मैं फाइन नहीं भर सकता, मैं फाइन नहीं भरूंगा, फाइन का डिफॉल्ट हो गया. सो व्हाट वी कैन डू? थिंक. बोल रहा है मेरे पास ₹1 नहीं है, कुछ नहीं है, फाइन भरने का पैसा ही नहीं है. सब ऐसे ही बोलेंगे. तो क्या करने का? फाइन के बदले में क्या देने का उसको? इम्प्रिजमेंट. इम्प्रिजमेंट देंगे उसको. सो इट इज कॉल्ड एज फाइन, इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन. ठीक है, बट एक लिमिट दिया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 50,000 का फाइन नहीं भरा तो मैं उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकता हूँ, 10-15 साल का. ऐसे ही मैजिस्ट्रेट रैंडमली कितना भी पनिशमेंट दे सकता है उसको, इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट पेइंग द फाइन. आंसर इज नो. लिमिट रख दिया. तो क्या लिमिट है समझते हैं. इट प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड अ टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन एज ऑथराइज्ड बाय लॉ अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. Whether imprisonment has been awarded as a part of the substantive sentence, उसको sentence में imprisonment दिया है, then it should not exceed, the fine should not exceed 1/4 of the term of the imprisonment which the magistrate is competent to inflict as a punishment for the offence. क्या मतलब है समझते हैं. Suppose 1/4, so maximum. So this you can copy. Maximum imprisonment in default of fine कितना है? In default of fine. So it is 1/4 of the imprisonment, max imprisonment that you could have levied for that punishment, for that offense. Maximum imprisonment. समझते क्या सीन है. So this is the rule. Now let's say if a person has been the person has denied to pay the fine and he can be punished for up to 36 months. The maximum punishment that was prescribed for that offense, maximum imprisonment जो बताया था उसके लिए, वो 36 months था और फाइन नहीं भर रहा है वो. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कितना देंगे इन डिफॉल्ट ऑफ दिस? 1/4. we'll give him 1/4 of 36 months. कितना आता है 1/4 of 36 months? तो मैक्सिमम उसको इम्प्रिजनमेंट कितना दे सकते हैं? 9 months दे सकते फॉर नॉट पेइंग द फाइन. सिंपल में क्या है, अगर तुम फाइन नहीं भरोगे ना तो जो भी इम्प्रिजनमेंट लगा सकते थे वो ऑफेंस के लिए, उसका मैक्सिमम 1/4 तुमको लगा सकते हैं हम लोग. सो मैक्सिमम फाइन फॉर नॉट पे, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट पेइंग द फाइन इज हाउ मच? 9 months. ठीक है, तो वैसे ही हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 1/4 दैट इज 25% वो लोग ने मेंशन कर दिया. नाउ कमिंग टू अरेस्ट ऑफ अ पर्सन. मार्केट इज इंपॉर्टेंट. It has come in the exam. You need to know with the section number. Section 41. Okay. It says, when can a police officer arrest without a warrant? तो देखो क्या है टॉपिक. क्वेश्चन सिंपल सी बीच क्वेश्चन. When can a police officer arrest a person without a warrant? विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है? तो सिंपल सी चीज, इफ अ पर्सन हैज डन अ कॉग्नाइजेबल सीरियस ऑफेंस, मर्डर, एक्सटॉर्शन, ऐसा कुछ कर दिया तो पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट. सेकंड, इफ अ पर्सन हु हैज डन हाउस ब्रेकिंग, घर तोड़ के तुम्हारे घर में घुस गया है, कोई चोरी कर रहा है, तो ऑब्वियसली तुम वारंट लेने जाओगे तब तक ये तो भाग नहीं जाएगा वो.
So in that case, the police officer can arrest without a warrant a person who has committed a case of housebreaking. Third, who is a proclaimed offender. प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन हो गया? सोचो, दाऊद इब्राहिम. अब दाऊद इब्राहिम को तुमने स्पॉट कर लिया, ही इज बीन प्रोक्लेम्ड बाय द गवर्नमेंट एज एन ऑफेंडर, यू कैन गो अहेड एंड अरेस्ट हिम. नेक्स्ट, इन केस you have found any stolen property, in whose possession you have found any stolen property, who obstructs a police officer in execution of his duty. तो पुलिस ऑफिसर को रोक रहा है, नहीं 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 आप रुक जाओ. आई एम स्टॉपिंग द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, सो अगेन आई कैन बी अरेस्टेड. अ पर्सन हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. डेजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मीन्स व्हाट? He has left the army and ran away. Have you seen the movie Laksh? Laksh movie थी फरहान अख्तर की जिसमें ऋतिक था. तो ऋतिक रोशन क्या करता है? आर्मी ज्वाइन करता है, फिर आर्मी से छोड़ के भाग जाता है वो. Is that allowed? It's a offense where the police officer can arrest you without a warrant. Next, a reasonable suspicion exists of having committed an act at any place outside India. So if you have committed a place outside India, let's say Osama bin Laden, he has committed an offense outside India. If he comes into India, we can arrest him without a warrant. A person who is a released convict and commits a breach of any rule. तो released convict, सोचो एक किसी को पैरोल पे छोड़ा था और उसने वापस ऑफेंस कर दिया, भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम लोग वापस अरेस्ट कर सकते हैं. फॉर एनी अरेस्ट फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन हैज बीन रिसीव फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर. एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे को कॉल किया कि ये वाइट गाड़ी में जो आ रहा है उसको अरेस्ट करो. सो आई हैव रिसीव्ड अ रिक्विजिशन, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, आई कैन अरेस्ट. सो सेक्शन 41 में दे हैड आस्क्ड राइट अ फ्यू ग्राउंड्स ऑन विच अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट. Next, arrest on refusal to give the name and residence. Imagine कोई पुलिस ऑफिसर आके तुमको पूछ रहा है कहाँ पे रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है. He is asking you your details, name and address. You, acting smart, are telling the police officer तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो. So in that case, when you refuse to give any kind of information about yourself and the police officer has reasons to believe that you are false or you have done something wrong, have committed a serious offense, he will arrest you. If any person who is accused of committing a cognizable offense does not give his name, residence, okay, which the police officer feels is false, he can be taken into custody. Arrest by a private person. Now, police officer can arrest, वो तो सुना था. Can you and me arrest someone? आंसर इज येस. अगर मेरे घर में कोई चोरी कर रहा है तो मैं उसको एक रूम में बंद कर सकता हूँ टिल द पुलिस कम्स एंड टेक्स हिम अवे. सो आई कैन ऑल्सो अरेस्ट अ पर्सन. अ प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस हैज कमिटेड अ नॉन बेलेबल कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और हु इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. सो इवन प्राइवेट पर्सन्स कैन अरेस्ट if I feel that you've done a non-bailable serious offense or you are a proclaimed offender. Proclaimed offender means what? दाऊद इब्राहिम और I have found Osama bin Laden जिसके ऊपर इनाम रखी है गवर्नमेंट ने. That time the ransom has been put. Arrest by magistrate. Magistrate can also order an arrest if a crime has been done before him. So magistrate has been given the power to arrest a person who has committed an offense in his presence or and also commit him to custody. तो कभी कभार in the witness box मारामारी हो गया, कोर्ट रूम के अंदर झगड़ा हो गया, मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर अरेस्ट ऑफ द पर्सन. अरेस्ट हाउ मेड. सो सेक्शन, तो अरेस्ट कैसे करेंगे? कभी तुमने देखा है पुलिस ऑफिसर्स कैसे अरेस्ट करने आते हैं? तो एक रहता है, देखो आई टेल यू. सेक्शन 46 sets out the manner in which a person is to be arrested.
The section authorizes a police officer or any person making an arrest to actually touch or confine the body of the person to be arrested, and such police officer may use all the necessary means to affect the person if there is a forcible resistance. This section does not give a right to cause death of the person. तो सोचो पुलिस ऑफिसर्स आए हैं यहाँ पे और इसको अरेस्ट करना है, सो दे कैन टच यू ऑल्सो, they can use limited force also, all those necessary to make the arrest possible. Moment तुम अरेस्ट हो जाओगे, तुमको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट करोगे. आर्टिकल 22 इस के अंदर मेंशन किया है. नॉट ओनली दैट, यू विल ऑल्सो बी गिवन, द पर्सन अरेस्टेड shall be taken before the magistrate without any necessary delay and shall be subjected to relating to bail. So all those provisions of bail will be given to him. Now let's see another thing, summons and warrant. Now ये summon एक अलग word है, warrant क्या है? So I'll explain. Very very interesting. ये एक proper criminal procedure में होता है. Suppose यहाँ पे magistrate है, मैजिस्ट्रेट के सामने एक कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट डाली है, कंप्लेंट डाल दिया. अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ही विल फर्स्ट सेंड अ समन्स. कोर्ट से तुम्हें एक समन्स आएगा. समन्स क्या होता है? समन इज अ इंग्लिश वर्ड विच मीन्स टू कॉल. कॉल द वेटर, समन द वेटर, इट मीन्स टू कॉल. सो दे कैन कॉल एनीबडी. दे कैन कॉल अ witness, they can call the accused, they can call for documents. तो कॉल करेंगे वो लोग. अब कॉल क्या, ये कॉल नहीं होता है, वो एक्चुअली समन्स घर पे भेजते हैं. या तो हैंड डिलीवरी होगी, पुलिस ऑफिसर्स आएंगे घर पे, हैंड डिलीवरी करके जाएंगे. समन्स का एक लेटर होगा, समन्स में लिखा होगा कि कोर्ट में बुलाया है, तुम्हारा ऑफेंस क्या है, तुम व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड एक्सेट्रा. हैंड डिलीवरी हो सकती है, स्पीड पोस्ट से दे सकते हैं, यू नो, ऑल ऑफ दैट, कुरियर कर सकते हो. बट समन्स जनरली अक्यूज क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते. तो सेकंड समन्स आता है घर पे, सेकंड टाइम आता है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया. तो कोर्ट बुला रही है तुम्हें, बट तुम लेटर ही नहीं ले रहे हो, पुलिस आ रही है तो घर में छुप के बैठे हो, बाहर ही नहीं निकल रहे हो. फिर पुलिस क्या करेगी, कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्स्पिशियस प्लेस of the house, in any visible, prominent, like the entrance or the door, they will stick the summons and it will be deemed that the summons has been given to you. The second summons आता है ना, accused should go to court. Why? Because अगर summons accept नहीं किया तो next step क्या होगा, तुम्हारे नाम का warrant निकल जाएगा. Warrant is a permission given by the court magistrate to the police officer to arrest the person. So first a summons will be issued, either to appear or for producing any document. Every summons issued by the court shall be in writing. It shall be signed by the officer and who is going to deliver the summons. The summons should be clear, specific. Service of summons. This summons will be served, that will be given by a police officer or a public servant. In case the service cannot be affected by exercise due diligence, then the serving officer can perform substituted services by affixing one of the duplicates on some conspicuous part of the home instead which the person normally resides. So they will stick the summons on your house if you don't come. So service of summons to corporate bodies, it will be given to the registered office. It can also be given to the officers in charge. Warrant of arrest. अगर summons नहीं सुनोगे, do not appear, then a permission will be given by the magistrate to the police officer to go and arrest the person. Every warrant of arrest shall be in writing. It shall be signed by the officer and it shall contain the seal. तो एक proper summons होगा, कोर्ट का नाम दिया होगा, मैजिस्ट्रेट का नाम दिया होगा, ऑफेंस क्या, ये सब दिया होगा. मार्क करो, इंपॉर्टेंट. तो कितनी बार हम लोग के अक्यूज को वारंट घर पे आ जाता है, वारंट पुलिस उठा के आती है, राइटिंग में आता है
name and designation of the police officer who is going to execute it, who is going to come and arrest, full name of the accused to be arrested, the offense is charged, the sign of the officer, and it must be having the seal of the court. So this is the warrant of arrest. तुमको लग रहा है कि सबसे पहले तो अच्छे से बुलाने का उनको समन करके, ओके, समन्स से नहीं आए, बात हुई कंप्लीट, तो वारंट इशू होगा. तुमको लग रहा है कि पर्सन लाइक दाऊद इब्राहिम विल कम फॉरवर्ड, वारंट दे देंगे? अंडरग्राउंड चले जाते हैं वो लोग. जब पता है कि गलत किया ही है तो वो लोग वारंट पे भी नहीं आने वाले, वो लोग भाग जाएंगे. तब क्या कर सकते हैं हम लोग? तब उनकी जो भी हम लोग प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं. वी कैन प्रोक्लेम देम एज ऑफेंडर्स. दे कैन इशू अ स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के अंदर कि ये पर्सन एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इसको कहीं पे भी दिखे तो अरेस्ट कर लेना. बट दाऊद इब्राहिम के ऊपर प्रोक्लेमेशन दिया है बट फिर भी नहीं आने वाला है वो. तब क्या करने का? उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का. प्रॉपर्टी अटैचमेंट तब तो आएगा वो, उसकी प्रॉपर्टी. तो दाऊद इब्राहिम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको अटैच करेंगे. सो अटैचमेंट, एंड इफ ही डजंट कम फॉरवर्ड दे विल सेल द प्रॉपर्टी. abscond. Okay, now you can't do, you can just nothing more that you can do. You can just have to wait for the police officers to be arrested, but till that time just take all his properties and sell it off. Now coming to another interesting part, which is called as a search warrant. Market is important, it has come in the exam also. Search warrant is given under your section 93. Now search warrant means a permission. So you get a permission from the magistrate to search something. Now कब issue करते हैं? It can be issued only in the following cases. सबसे पहले, where the court has reasons to believe that the person summoned or document, the person summoned to produce a document will not produce it. For example, you have certain evidence and you're not producing the evidence. So the court will say, go and get a search warrant and go and get the information from him. So if a person is refusing, I will not give, जा जो करना है कर ले, तो फिर पुलिस ऑफिसर सर्च वारंट लेके तुम्हारे घर में आएगा, सर्च करेगा. Because the person will not produce it. Second, where such a document or thing is not known to the court to be in possession of any person. ये पता नहीं किसके पोजेशन में है, तो एक जनरल सर्च वारंट इशू होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग में घर है, इसमें कहीं ना कहीं हमको पता है कि एक अक्यूज आया था, इसने चोरी का माल कहीं छुपा दिया है, अब पता नहीं किसके घर में है, तो एक जनरल सर्च वारंट इशू होगा. बिकॉज वी डोंट नो इन हुज पोजेशन इट इज देयर. थर्ड, वेयर अ जनरल इंस्पेक्शन इज कंसिडर्ड necessary. जैसे उनको लग रहा है कि एक सर्च इशू करना जरूरी है. Sometimes the directors or the officers in charge hide the information, do not give up the files, and a general search can be given. A search warrant may be general or can be restricted in its scope. So they can say आप कहीं पे भी जा सकते हो, या बता सकते हैं आप सिर्फ यही ब्रांच में जा सकते हैं, ब्रीच कैंडी ब्रांच में ही जाने का. Clear? Then comes another part, maintenance of public order and tranquility. Now, unlawful assemblies. So many times we are seeing that they are blocking the roads, they are making protest and all of that. Now what happens when the government realizes, or the state government, when they realize that a law and order situation can be affected, they issue statements that no more than 5 people cannot come there. So that's called as unlawful assemblies. Okay, dispersal of the assembly by use of civil force. So what happens, any executive magistrate or officer in charge may command any unlawful assembly. अगर उनको लग रहा है कि थोड़े लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, they have come together and are disturbing peace, an assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of public peace to disperse. When I say disperse, means to move out, to separate. So 5
or more persons, when they come together and they feel that there is a disturbance of public peace, so public peace will be affected, they can ask the crowd to disperse. Okay, if any such assembly does not disperse, they may proceed to disperse such an assembly by use of force. So this is given under section 129. It is also given in 141. This is 129 of CRPC. Okay. Now another one is public nuisance. That's section 133. Public nuisance क्या होता है? You are disturbing peace. So the following public nuisances are considered to be public nuisance. For example, unlawful obstruction should be removed from any public place, from any manner, in any way which is obstructing the river, channel, etc., which may be lawfully used by public. For example, you go to beach, you go to Juhu beach, and on Juhu beach you make your own tent and start stopping people. Can you do that? Answer is no. That setup that you have made, that structure that you have made will be considered to be a public nuisance because you are doing an unlawful obstruction or you're creating nuisance in a public place or any river or channel, etc. Second, this is all public nuisances. और क्या हो सकता है? You are carrying on any trade which is injurious to the health of the community, or your construction of any building, or disposal of any substance which is likely to cause conflagration or explosion. So any explosive that you have kept which is dangerous without any lawful justification can be considered to be a public nuisance. Building a tent structure near a public place, any dangerous animal, okay, requiring to be destroyed, confining or disposal. For initiating the prevention under this section, the magistrate should keep in mind that he is acting purely in public interest. So whenever they order that it is a public nuisance, you have to ensure that you are acting in public interest. Now coming to another important part, you can mark it as important. It is called as summary trials. Summary trial simply means speedy settlement of cases. What happens? You think all the cases are big cases? Or there are many small cases also. Small cases mein, don't you think we should settle the matter really quickly without going into merits and all of that? So that's the concept of summary trials. So in summary trial, you try to settle the matter in a speedy manner. Now, it applies to offenses which are not punishable for a term exceeding 2 years. That means only summons cases, only summon cases can be summarily tried. Immediately you can end the matter. Now section 206 of the Criminal Procedure Code sets out the provisions for summary trial. It says any chief judicial magistrate, any metropolitan magistrate, any of the judicial magistrate first class, they can order or they can conduct a summary trial. Now what are the offenses जिसको तुम summarily try कर सकते हो? Murder का केस फटाफट end कर सकते हो कि उसके लिए proper investigation, proper evidence, everything will be done. So the offenses which can be summary trial are given below. So if you see here, they will all be very small offenses. All of these can be summary trial can be done for these. Offenses which are not punishable with death, imprisonment or a term exceeding 2 years. So we can see summons cases can be summarily tried. Theft of a value not exceeding 2000 rupees. Any stolen property whose value is not exceeding 2000, तो 2000 के नीचे की property है. Anyone who is assisting for stolen property which also does not exceed 2000 rupees. House trespass, someone has just trespassed on your property, उसको भी फटाफट end कर सकते हो. Any insult with the intent to provoke breach of peace can be summarily tried. Any abetting, encouraging all these foregoing offenses. Now this is given under your section
260. Now 262 says that all the offenses which are summarily tried, a summary procedure will be followed. In subsection 2, it says that the time limit for the sentence, that no sentence of imprisonment exceeding 3 months shall be passed in summary trials. So maximum punishment in if a matter is being summarily tried कितना हो सकता है? Max 3 months. समझते हैं? सो एक समरी ट्रायल है, समन्स केस को फटाफट रफा दफा कर सकते हो, बट फटाफट एंड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुमने उसको 1 साल की सजा दे दी. सो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दैट यू कैन ऑर्डर इज 3 months. So initially, if a normal matter went, you could have given punishment up to 2 years. That is the maximum punishment. So warrant case. But अगर तुम एक summons case को summarily try करना चाहते हो, फटाफट end करना चाहते हो, तो you cannot give imprisonment of more than 3 months. So you need to remember 3 months. Clear? Now जो भी मैटर समरी ट्रायल कर रहे हो उसका तुम्हें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. Serial number of the case, date of commission of the offense, date of the report, name of the complainant, name of the accused, findings, sentences, etc. Now, inherent powers of the High Court. Now, section 482 of CRPC has one of the most important sections of the code, which is called as the inherent powers of the code, High Court. So High Court has some powers which is inherent, they inherently have it. It cannot be taken away by any law or any CRPC भी नहीं ले सकता है. So it says nothing in this code, nothing in CRPC shall deemed to limit the inherent powers of the High Court. High Court के पास में थोड़े already powers है, उसको limit नहीं कर सकते, वो हमेशा उनके पास रहेगा. The powers of the High Court are partly administrative and partly judicial. देखेंगे कौन से इनहेरेंट पावर्स कौन से है. पावर टू स्क्वॉश एन FIR. एक एप्लीकेशन किया था मैंने क्वॉशिंग ऑफ FIR के लिए, हाई कोर्ट के अंदर किया था. अब हाई कोर्ट के पास में पावर्स है अंडर सेक्शन 482 दैट टॉक्स अबाउट इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. अब इसका पूरा पेटिशन है, मैं ही अपीयर किया था फॉर क्वॉशिंग ऑफ FIR. ओके, इसके अंदर एक FIR लॉन्च हुआ था. वो FIR कभी भी लॉन्च होता है और तुमको उसको हटाना है तो हाई कोर्ट के पास में ही पावर है, तो तुमको फिर हाई कोर्ट के पास में एप्लीकेशन देना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि FIR गलत था, या तो फिर पार्टीज के बीच में कंसेंट हो चुका है, दैट FIR कैन बी स्टॉप्ड एंड द केस कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ. द कोर्ट कैन ऑलवेज टेक नोट जब भी कोई मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है तो हाई कोर्ट कैन इंटरवीन एंड क्वॉश एनी FIR. सो इफ वी फील दैट एनी FIR हैज बीन रॉन्गली इशूड, हाई कोर्ट हैज दैट पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस कि जब भी उनको लग रहा है कि गलत FIR इशू हुआ है, दे कैन स्क्वॉश इट. बट दीज पावर्स शुड बी वेरी केयरफुली एंड स्पेयरिंगली यूज्ड विथ कॉशन. दे शुड वेरी रेयरली यूज दिस ऑप्शन. The Supreme Court in Madhu versus State of Maharashtra, it was held the following principles. The power should not be resorted if there is a specific provision in the court to redress the relief of the aggrieved party. So if the aggrieved party has a remedy already provided, then they cannot go to the High Court for using their inherent powers. Only when the aggrieved party has no other option left, then they can go to the High Court, and the High Court will then use their inherent powers. It should be exercised very sparingly. Very rarely High Court should use their inherent powers. It is like a backup that they have कि जब भी कुछ गलत रहेगा ना वो लोग इंटरवीन करेंगे, और पार्टी के पास में और कोई दूसरा रिलीफ नहीं है. It should not be exercised against the express bar of law. If there is an express bar, then they should not be exercised. It is well settled that inherent powers under section 482 can be exercised only when there is no other remedy available to the litigant. So we are done with the chapter. Now we are just seeing the past year exam questions.
So first they have asked discuss summary trial under the criminal procedure code. So we have done what is the summary trial. Section 2, summary trial means speedy settlement of disputes. All those summons cases can be done which जिसमें punishment of not more than 2 years है, उसका ही summary trial कर सकते हो. और जब करोगे भी तो maximum imprisonment कितना हो सकता है that you can give is 3 years, 3 months. Okay. Then the next question that they have asked, distinguish between cognizable means serious offences, and non-cognizable offences. Section 2C defines what is a cognizable offence. It means an offence in which the police officer may arrest, which is shown in the first schedule. Cognizable as in the first schedule. 2L of CRPC states what is a non-cognizable offence. मतलब schedule 1 के अंदर दिखा है non-cognizable, तो non-cognizable offence. Here the police officer cannot arrest without a warrant. Then अगर serious offence है तो FIR issue होगा for cognizable offences. FIR is issued, which is in which section 154. अगर non-cognizable offence है तो NC issue होती है, वो किसमें 155. So next question that they have asked in December 2019, enumerate any 4 cases in which the police officer may arrest a person without a warrant. So ये कौन सा section था? Section 41. If you have committed any cognizable offences, so this also other reasons they have given, any 4 of them you can pick up. Deserter of the armed forces, etc. Search warrant कौन से section में था? 93. Under what circumstances can a search warrant be issued? When the court has reasons to believe that a person summoned will not produce it. It is not known in whose possession the documents are there, so a search warrant has to be issued, or a general inspection is necessary. And a search warrant may either be general or restricted in its scope. And that is it. We are done with the chapter.